کورونا کے باعث لاک ڈاؤن سے سیاحت سے وابستہ لاکھوں افراد بے روزگار، مری سے گلگت، سوات سے ناران کاغان تک سیاحت سے جڑے لاکھوں افراد کا سیاحت سے پابندی ہٹانے کا مطالبہ۔ عید قربان کی آمد، مہنگائی کا طوفان سر اٹھانے لگا۔ حیدرآباد میں سبزیوں اور مسالہ جات کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ انتظامیہ مہنگائی کنٹرول کرنے میں ناکام، شہری پریشان۔ خوشاب کے مختلف علاقوں میں پینے کا پانی نایاب، فلٹریشن پلانٹ دیکھ بھال نہ ہونے سے خراب۔ اہل علاقہ کا ڈسٹرکٹ انتظامیہ اور بلدیہ کے خلاف احتجاج، نعرے بازی۔ آزاد کشمیر کے 3 اضلاع کو ملانے والی ڈیفنس روڈ آزاد پتن کے مقام پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار۔ شاہراہ پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے حادثات معمول، آمد و رفت میں مشکلات۔ سرگودا میں کورونا سے صحتیاب ہونے والوں کو ڈاکٹروں نے تحائف دے کر گھروں کو رخصت کیا۔ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس سٹاف نے تالیاں بھی بجائی۔ اور مہمانوں کے لیے چوپال بنانا صدیوں پرانی روایت جو آج بھی دیر بالا میں مختار خان کے حجرہ میں قائم و دائم نظر آتی ہے۔ السلام علیکم۔ شہر شہر گاؤں گاؤں کے سفر کے ساتھ میں ہوں لقمان علی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، آغاز کریں گے۔ کرونا لاک ڈاؤن کے لگائی پابندی نے سیاحت سے وابستہ لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا۔ مری سے گلگت تک، سوات سے ناران کاغان تک سیاحت سے جڑے لاکھوں افراد کا ایک ہی مطالبہ، سیاحوں کی آمد پر پابندی ختم کی جائے۔ پاکستان میں سیاحتی سیزن ختم ہونے میں صرف 15 دن رہ گئے۔ کورونا لاک ڈاؤن میں لگائی پابندی نے سیاحت سے وابستہ لاکھوں افراد کو بے روزگار کر دیا۔ غریبوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ پہنچی۔ سیاح کو آنے دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کا روزگار چل سکے۔ مری اور گلیات میں دہاڑی دار پریشان، سیزن گزر گیا، سیاح آئے نہیں، کمایا کچھ ہے نہیں، برف باری شروع ہو گئی تو کھائیں گے کہاں سے؟ مری بند ہے، سیاح کوئی نہیں آ رہا، اور مہربانی کری تو مری کی کھولیا گیا سیاح نال سڑا کام چلنا پیا۔ ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ہر نو میں خالی جھولے بچوں کی راہ تکنے لگے۔ کاروبار نہ ہونے سے تاجر دہائی دینے لگے۔ کاروبار کافی متاثر ہو رہا ہے، ہماری حکومت سے درخواست ہے کہ اس کو کھولا جائے۔ سوات میں بھی ہوٹل خالی، بازار خالی پڑے ہیں۔ ٹیکسی کار چلانے والے ڈرائیور کہتے ہیں جب تک گاڑی رکی رہے گی زندگی کا پہیہ کیسے چلے گا؟ کورونا لاک ڈاؤن کی وجہ سے مری سے گلگت تک، سوات سے ناران اور کاغان تک سیاحت سے جڑے لاکھوں خاندان ایک ہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سیاحوں کی آمد پر پابندی ختم کی جائے۔ مشرقی بائی پاس مویشی منڈی تاحکم ثانی بند کر دی گئی۔ 3 روز قبل ٹیمپریچر چیک کرنے پر بیوپاریوں نے ہنگامہ آرائی اور توڑ پھوڑ کی تھی، جس کے بعد انتظامیہ نے مویشی منڈی بند کرا دی اور مویشی منڈی کی بندش اور وہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت پر پابندی کا نوٹس بھی لگا دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ کوئٹہ میں مشرقی بائی پاس مویشی منڈی تاحکم ثانی بند کر دی گئی۔ مزید بات کریں گے، نمائندہ نیوز عصمت امان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عصمت امان، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ 3 روز پہلے یہاں پر جو بلوچستان میں سب سے بڑی مویشی منڈی ہے مشرقی بائی پاس پر، وہاں پر یہاں پر متعلقہ ادارے کی جانب سے ٹیمپریچر چیک کیا جا رہا تھا کورونا وائرس کے پیش نظر، جس پر جو ہے 30 کے قریب بندوں کو جو ہے وہاں پر ٹیمپریچر کے ذریعے انہیں ٹیسٹ کرنے کے لیے کہا گیا کورونا وائرس کا، جس پر بیوپاری مشتعل ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہاں پر متعلقہ اداروں کے جو اہلکار تھے ان کے ساتھ جو ہے مار پیٹ بھی کی، اور جو ہے وہاں پر ان کے جو تمام سامان تھے انہیں بھی جو ہے نظر آتش کر دیا گیا تھا، جس کے بعد سے جو ہے وہاں پر مشرقی بائی پاس میں مویشی منڈی بند تھی، جس پر آج جو ہے صوبائی حکومت انتظامیہ کی جانب سے جو ہے کوئٹہ انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر جو ہے پابندی لگا دی گئی۔ تاحکم ثانی وہاں پر کسی بھی قسم کے جانور مویشی منڈی میں جو لانے پر پابندی عائد کر دی گئی اور خرید و فروخت پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، جبکہ اس کے خلاف ورزی کرنے والے بیوپاریوں کے خلاف بھی سخت کارروائی کا فیصلہ کیا گیا اور جو واقعہ کی ہے اس کی بھی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عصمت امان بتا رہے تھے اس حوالے سے۔ ادھر جیکب آباد کی مویشی منڈی میں بہترین اور تگڑے جانور تو لائے گئے ہیں، مگر مہنگائی نے لوگوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ تاہم مویشی منڈی میں کورونا SOPs پر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی نظر نہیں آ رہا۔ مزید بتائیں گے اسد علی مغل۔
प्लाजा के करीब आते ही जैकाबाद में कुर्बानी के जानवरों की मवेशी मंडी का आगाज। मंडी में मुख्तलिफ इलाकों से आला नस्ल के छोटे बड़े कुर्बानी के जानवर लाए गए हैं, मगर इस बार कुर्बानी के जानवर भी महंगाई के असर से महफूज न रह सके। बकरे, बैल, छतरे भी दुगनी कीमतों में फरोख्त किए जाने लगे। कीमतें यहाँ से पिछली बार से यहाँ से ज्यादा डबल है। जो ये गाय मिलती थी 60,000 70,000, वो 90,000 की, 95,000 की, 1 लाख, उस हिसाब से हमें थोड़ी परेशानी हो रही है। मवेशी मंडी में सहूलियात न होने पर लोगों का मौकूफ था कि इंतजामिया धूप से बचाव के लिए शेड और पीने के साफ पानी का बंदोबस्त भी न कर सकी। आने वाले मेहमानों के लिए ना इंतजाम होना चाहिए छां का। ये व्यापारी साहब धूम में है, इंतजामिया को चाहिए इधर तंबू लगाना, छां का इंतजाम होना चाहिए, पानी का इंतजाम होना चाहिए। मवेशी मंडी में खूबसूरत जानवर खरीदारों की राह देख रहे हैं, मगर महंगाई राह में रुकावट का बाइस बन चुकी है। कोरोना SOPs के तहत मवेशी मंडी में दाखिले पर पाबंदी तो आयद कर दी गई, मगर लोग SOPs की खिलाफ वर्जी करते नजर आए। मवेशी मंडी में समाजी फासले समेत मास्क की पाबंदी का भी ख्याल नहीं किया जा रहा। असद अली मुगल, नियो, जैकाबाद। बहावलनगर जिला इंतजामिया की जानिब से जिला भर में ईद उल अजहा के मौका पर कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 13 सेल पॉइंट्स कायम कर दिए गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ तनवीर अहमद साबरी से। जी तनवीर, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क भर की तरह बहावलनगर में भी मवेशी मंडियां सजा दी गई हैं। जिले इंतजामिया की जानिब से जिला भर में जो है आर्जी तौर पर 13 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जबकि तहसील बहावलनगर में 5 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं। ये मवेशी मंडियां हुकूमत पंजाब की SOPs के मुताबिक शहर से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर कायम की गई हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मिंचराबर रोड पर एक आर्जी सेल पॉइंट पर, जहाँ पर ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए सेल पॉइंट मुकर्रर किया गया, लेकिन यहाँ पर ना तो व्यापारियों की तादाद है ना ही खरीदार मौजूद है। जबकि जिले इंतजामिया की जानिब से इन सेल पॉइंट पर महकमा लाइफ स्टॉक, तो म्यूनसिपल कमेटी का अमला और पंजाब पुलिस का अमला जो है तैनात कर दिया गया। यहाँ पर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर खरीदार न होने की वजह से ये जो सेल पॉइंट है वैरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। इस दूसरी जानिब जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये जो सेल पॉइंट बनाए गए हैं ये शहर से 2 से 3 किलोमीटर के फासले पर बनाए गए, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर जाना मुश्किल है। और उनका ये भी कहना था कि कोरोना की वजह से गुज़श्ता कई दिनों से उनकी कुव्वत खरीद जो है वो कम हो गई है, और जबकि जो इन सेल पॉइंट पर मवेशी मंडियों में ईद कुर्बान के जानवर हैं उनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। जी, लाहौर की मनावा मंडी में बिल्लू और मस्तू की जोड़ी के चर्चे हैं। कैट वॉक करते बिल्लू मस्तू ने खूबसूरती, वजन और कद काट में सबको पिछाड़ दिया। मालिक ने दूध मक्खन से पाले बिल्लू मस्तू की कीमत 18 लाख मुकर्रर कर दी। मजीद बताएंगे अरसलान जावेद। ऊंचा कद काट, मंडी में अपनी ही ठाट बाट, बिल्लू और मस्तू की जोड़ी के अनोखे हैं अंदाज। पाँव में झांझर की झनकार पर करते हैं कैटवॉक। मक्खन की तरह सफेद चमकती बिल्लू मस्तू की जोड़ी की मंडी में हर तरफ धूम। नुकरे गुलाबी राजनपुरी नस्ल की बैलों की जोड़ी का हर कोई मोतरफ। जोड़ी मुझे पसंद आई है, पूरी मंडी में सबसे खूबसूरत जोड़ी है। 15 लाख इसका लगा दिया, लेकिन वो कह रहा 18 लाख से कम का नहीं देना। जानवर तो बहुत पसंद है, दिल तो करता है लेके जाने को, लेकिन वो दे नहीं रहा। मालिक के मुताबिक बिल्लू और मस्तू की 15 लाख कीमत लग चुकी, जबकि 18 लाख ही वसूल करेगा। इन्हों का भाजी लग रहा सानू 15 लाख रुपया। हाँ जी, अहा नहीं के दिते है ये। अं बहुत मेहनत की है इन्होंने उत्ते, इन्होंने दुध पिआते रहे हैं, इस बाद मक्खन ठके खवाते रहे हैं, ते इन्हों का जरा असी 18 तो 20 लाख रुपए तक इन्होंने सेल करना चाहते हैं। नाज नखरों वाले बिल्लू और मस्तू को रोजाना 5 किलो दूध और खल वंडों से पाला गया है। बबलू मस्तू की जोड़ी ने मंडी में सबको बिछाड़ दिया है। मालिक का कहना है कि अपनी मेहनत का मोल वसूल करेगा। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अरसलान जावेद, नियो न्यूज़, लाहौर। ईद कुर्बान आते ही टंडुवाला यार की मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में दूर दराज से खूबसूरत बकरे, दुम्बे, बछड़े और बैल आना शुरू हो गए। खरीदारों का भी रश बढ़ने लगा है। मजीद बताएंगे सैयद गुलाम हैदर बुखारी। बकरा ईद आते ही टंडुवाला यार की मवेशी मंडी सज गई। दूर दराज से खूबसूरत जानवर आना तो शुरू हो गए, लेकिन व्यापारियों का कहना है जहां कोरोना वायरस से मुल्क भर के कारोबार मुतासर हुए, वहां इनका भी कारोबार बहुत मुतासर हुआ। खूबसूरत जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन खरीदार नहीं है। उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह के चांद दिखने के बाद ग्राहक आएंगे और कारोबार चलेगा
कोरोना की वजह से लोग थोड़ा सा रुके हुए हैं। कोरोना के हवाले से इस टाइम जो है हर आदमी इस चीज़ से मुतासिर हुआ। जो आदमी 5 लाख का जानवर लेने वाला था वो लाख सवा लाख के ऊपर खड़ा हुआ है। मवेशी मंडी के इंचार्ज भी मवेशियों के कारोबार से कुछ मायूस नजर आते हैं। व्यापारियों का कहना है कोरोना वायरस की वबा के सबब इस साल मंडी में माल कम आया और खरीदो फरोख्त के मामलात भी ना होने के बराबर हैं। कैमरामैन शाहरुख के साथ सैयद गुलाम हैदर बुखारी, नियो न्यूज़, टंडुवाला यार। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि सियालकोट एमनाबाद रोड पर कायम मवेशी मंडी जिला इंतजामिया की गफलत के बायस मसाइल का गढ़ बन गई। एक जानिब कोरोना एसओपीज हवा में उड़ा दिए गए तो दूसरी जानिब मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान। व्यापारी और मवेशी परेशान हैं। सियालकोट एमनाबाद रोड पर व्यापारी कोरोना और इंतजामिया दोनों से लाइल्म निकले। न चेहरों पर मास्क और न ही समाजी फासलों का ख्याल रखा गया, जिससे कोरोना फैलाव के खदशात बढ़ गए। दूसरी जानिब बारिशों का सिलसिला शुरू होने से मवेशी मंडी में पानी जमा होने लगा। जिले हुकूमत की नाक़िस हिकमत अमली और इंतजाम के बायस व्यापारी और मवेशी दलदल नुमा कीचड़ और पानी में खड़े होने पर मजबूर हैं, जबकि शहरियों को भी खरीदारी के लिए दुश्वारी का सामना है। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनाए गए एसओपीज के तहत बुजुर्ग शहरियों और बच्चों की मंडियों में दाखिले पर पाबंदी को शहरियों ने नजरअंदाज कर दिया। इस वक्त नुमाइंदा न्यू न्यूज़ अली शेर मजीद मवेशी मंडी में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली शेर, बताइएगा इस हवाले से क्या सूरत हाल है यहाँ पर मंडी में? आज बिल्कुल गुजरांवाला में मवेशी मंडियां सज गई हुई हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से 15 मकामात पर जो है मंडियां सजाई गई हैं, जिनके जिला इंतजामिया की जानिब से मंडियां सजाने के एसओपीज जो है बताए गए थे, लेकिन मंडियों में कोई भी एसओपीज के मुताबिक खरीदो फरोख्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही। एसओपी में कहा गया था कि मास्क का और बड़े जो 50 साल की उम्र से अबव है और बच्चों का मंडी में दाखिला ममनू होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडियों में बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं और 50 साल की उम्र से बड़े भी जो है अफराद देखने में आ रहे हैं। मवेशी की खरीदो फरोख्त की जा रही है। बदमी दिखा सके तो छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं। एसओपीज की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। दूसरी तरफ 50 साल से जायद के जो अफराद थे वो भी यहाँ पे देखने में आ रहे हैं, लेकिन जो वक्फे के मुताबिक जो जिला इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि 3 फुट से जायद का वक्फा रखा जाएगा और वहाँ पे जानवर की खरीदो फरोख्त की जा सकेगी। सैनिटाइजर और मास्क का भी जो है यहाँ पे मंडी में इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। शहरियों का यही मुतालबा है कि मंडियाँ लगवाई गई हैं तो जिला इंतजामिया जो है एसओपीज पर भी अमल करवा सके, ताकि दोबारा जो है कोरोना वायरस के जो अफराद है उनमें इजाफा ना हो सके। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि फी तोला सोना मजीद 1500 रुपए महंगा हो गया। फी तोला सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,15,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 1,286 रुपए के इजाफे से 98,594 रुपए का हो गया। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से। नुमाइंदा न्यूज़ राजा कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। जी राजा कामरान, मजीद कहिएगा। देखिए, पाकिस्तान की जो बिलियनियर मार्केट है कराची में वो दिन 2 बजे खुलती है और ये जो लंदन मेटल एक्सचेंज है इसके साथ इसका कारोबार शुरू होता है। तो हम ये देख रहे हैं जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें सोने की जो कीमत है फी औंस सोने की कीमत में $31 का इजाफा हुआ है और इस इजाफे के बाद जो है वो सोना अपनी नई तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इसी जो इजाफे का असर है वो हम पाकिस्तान में भी देख रहे हैं और पाकिस्तान में सोने की कीमत में 1500 रुपए का नुमाया इजाफा हुआ है और ये 1,15,000 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। इस वक्त जो सरमायाकार है उनका ये कहना है कि जो सरमायाकार है वो करेंसियों के बजाय अब डॉलर गोल्ड में ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं ताकि वो महफूज और मेटल में सरमायाकारी कर सके और जो दुनिया भर में कोरोना की वजह से मईशत को नुकसान हुआ है उससे वो बचने के लिए सोने की में अपनी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी कर रही हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया राजा कामरान इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। ईद कुर्बान से कबल सुहावा पुलिस की अहम कार्रवाई। 6 रुकनी मवेशी चोर गैंग को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। चोर बकरियां, बकरे, बैल चोरी करके दूसरे शहरों में बेचते थे। सुहावा में ईद कुर्बान से कबल पुलिस की बड़ी कार्रवाई के नतीजे में मवेशी चोर गैंग रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक मुतहरिक चोर गैंग बकरियां, बकरे, बैल चोरी करके दूसरे शहरों में बेचते थे। मुलजिमान के खिलाफ 4 के करीब मुख्तलिफ नौयत की वारदातों के मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस थाना सुहावा ने बड़ी महारत से गैंग को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से मवेशी भी बरामद कर लिए।
मंजनाबाद की मवेशी मंडी में मकामी इंतजामिया सहूलियात मुहैया करने में नाकाम। व्यापारी और जानवरों के अलावा मकामी इंतजामिया का अमला भी गायब। मवेशी मंडी वीरानी का मंजर पेश कर रही है। कुर्बानी के लिए खरीदारी के लिए आने वाले शहरी परेशान हैं। मंजनाबाद की मवेशी मंडी में मकामी इंतजामिया की जानिब से सहूलियात का शदीद फुकदान है। गुज़िश्ता बारिश का पानी इंतजामिया निकालने में ताहाल नाकाम है। मवेशी मंडी से मुकामी इंतजामिया का अमला गायब। व्यापारी भी अपने जानवरों समेत गायब हैं, जिसकी वजह से मवेशी मंडी वीरानी का मंजर पेश कर रही है। शहरी शदीद परेशानी से दो चार हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान के वीएन प्लांट फॉर पाकिस्तान के तहत मंडी बहाउद्दीन में शजरकारी मुहिम के दौरान 10 लाख पौधे लगाकर अहदाफ पूरा किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और सेकेंडरी स्कूल में 1 मिनट में रिकॉर्ड 2000 पौधे लगाए गए। प्लांट फॉर पाकिस्तान शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह रुकने कौमी असम्बली हाजी इम्तियाज अहमद चौधरी और मेंबर कौमी असम्बली चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए पोस्टल सर्विसेज डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने किया। इस मौका पर डीओ फॉरेस्ट राना मोहम्मद अकरम ने बताया कि पिछले साल फॉरेस्ट और दूसरे इदारों के मुआवनत से तकरीबन 13 लाख पौधे लगाए गए। टारगेट कामयाबी से मुकम्मल किया गया, जबकि इस साल 10 लाख पौधे लगाने का टारगेट भी पूरा किया जाएगा, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। डिप्टी कमिश्नर मेहताब वसीम अजहर ने कहा, हमें जंगी बुनियादों पर शजरकारी को फ़रोग देना होगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। कोरोना वायरस के बायस चमन पाक अफगान बॉर्डर गुज़िश्ता 4 माह तक मुसलसल बंद रहने के बाद सरकार की जानिब से महदूद पैमाने पर तिजारत के फैसले को मुकामी कबाइल और ताजरों की जानिब से रद्द किए जाने और पाक अफगान बॉर्डर को ब्लॉक करने के बाद आज पाक अफगान बॉर्डर मरकजी शाहराह पर धरना देने वाले मुंतजमीन ने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बॉर्डर पर फंसे ट्रालर और ऑयल टैंकरों के लिए रास्ता खोल दिया। चमन बॉर्डर से हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ अब्दुल बासित अचकज़ई। जी अब्दुल बासित, मजीद बताइएगा। चमन पाक अफगान मरकजी शाहराह पर 50वें रोड में एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि इंसानी हमदर्दी के बिना पर जो ट्रेड मुअत्तल था उसको दोबारा बहाल किया गया है। इस वक्त मेरे साथ मरकजी अंजुमन ताजरान के सदर मौजूद है। मजीद उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस तरह फैसला किया है, कब तक ये ट्रेड बहाल रहेगी। ताजरों का सियासी पार्टियों पर मुश्तमिल कमेटी का ये फैसला था कि इंसानी होने के नाते इंसानी हमदर्दी के खातिर पाक अफगान ट्रांजिट नाटो माटो छोड़ दिया गया और एहतजाज का दायराकार मजीद लॉन्ग मार्च के जरिए चमन से सफ़र करके क्वेटा सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज व धरना उसके शक्ल में सूबाई गवर्नमेंट सूबाई असम्बली के सामने एहतजाज नोट करेंगे और धरना जो है जारी रहेगा जब तक पाक अफगान बॉर्डर दोनों जानिब से खोलना हो। जी बिल्कुल, आपने सुना होगा, उनका कहना था कि जब तक हमारे मुतालिबात नहीं माने जाते तो एहतजाज का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी फैसलाबाद की मार्केटों में आटा गायब है। जहां मौजूद है वहां दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। चक्की पर फी किलो आटा 70 रुपए में फरोख्त होने लगा। शहरियों ने आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। फैसलाबाद से मजीद बताएंगे साजिद खान। महकमा खुराक और ज़िली इंतजामिया आटे की दस्तयाबी को यकीनी बनाने और कीमतों को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई। मार्केटों में कहीं आटा नायाब तो कहीं दुकानदार आटे की मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। आटे का रेट बहुत महंगा हो गया है। पहले 805 रुपए का था, अब हम लेके नहीं आते महंगा होने की वजह से। 20 किलोग्राम आटे के थैले की कीमत 1250 रुपए से भी तजावज कर गई है, जिससे आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुहाल हो गया है। इसी मोहम्मद अली कहते हैं कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इकदाम कर लिए हैं। नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को आड़े हाथों लिया जाएगा। आटे की कीमत में इजाफा हुआ था और अब गवर्नमेंट ने नई कीमत का तयन कर दी है, तो लिहाजा जैसे ही हमारे पास इन राइटिंग चीज़ें आ जाती हैं तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बाकी जो इसकी वायलेशन कर रहे हैं उसके खिलाफ ज़िली इंतजामिया एक्शन ले भी रही है। शहरी हुकाम से मुतालबा करते हैं कि आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सख्त इक़दाम उठाए जाएं ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ साजिद खान, न्यू फैसलाबाद। गर्मी और हब से निढाल पेशावर के शहरियों पर पैसकों को रहम नहीं आया। गर्मी की बढ़ती हुई शिद्दत के साथ शहर में लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ गया है। शहर में 6 से 8 जबकि मज़ाफ़ात में 16 से 20 घंटे तक बिजली बंद रहती है, जिससे शहरी शदीद मुश्किलात से सामना कर रहे हैं। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ जमील खान से। जी जमील, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, गर्मी का पारा हाई होने के बावजूद पेशावर में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला ताहाल जारी है, लेकिन हुकूमत की जानिब से बिजली
की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए या लोड शेडिंग के खात्मे के लिए किसी किस्म के इकदाम ताहाल नहीं उठाए गए। खुसूसन जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं पेशावर के, तो वहाँ पे शहरी इंतहाई मुश्किल से दो चार है, रोज़गार जो है मुतासर होता जा रहा है। यहाँ पे लोड शेडिंग का बहुत मसला है जी, 8 से 12 घंटे तक यहाँ लोड शेडिंग होती है और पानी का भी यहाँ कमी है और ख़ासकर हमारे ख़वातीन को भी बहुत तकलीफ है और रोज़गार भी मुतासर हुई है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि उसको आप लोगों की टीवी की वजह से कि हमारी लोड शेडिंग कम किया जाए और हमारा रोज़गार भी मुतासर हो रहे हैं। कुंडा कल्चर है वो भी नहीं है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे बिल भी जमा कराते हैं, फिर भी बिजली जो है तवील लोड शेडिंग जारी है इसकी। जी फैसलाबाद में वासा की नहली का बायस बेशतर इलाकों का सीवरेज सिस्टम ठीक ना हो सका, जबकि 2 रोज कबल होने वाली बारिश का पानी भी ना निकाला जा सका, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे इसी हवाले से वकास शिराज से। जी वकास, बताइएगा क्या कहते हैं शहरी? जी बिल्कुल, वासा की नाअहली की बिना पर जो है सीवरेज सिस्टम जो है बिल्कुल जो है शहर के बेशतर इलाकों का ख़राब है। दूसरी तरफ बारिश का पानी जो खड़ा हो गया है, जिसकी वजह से शहरी को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वासा की जानब से जो मानसून से कबल जो है मुतअद्दिद दावे किए गए थे कि कहीं भी जो है बारिश का पानी खड़ा नहीं होगा, सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, जो पाइप लाइन है उनको साफ़ कर दिया गया है। लेकिन ये तमाम के तमाम दावे बेबुनियाद साबित हो गए, क्योंकि इस वक्त भी जो है शहर के बेशतर इलाकों में जो अभी तक जो है पानी खड़ा है। 2 रोज हो गए जो बारिश हुए, लेकिन अभी भी जो है बारिश का इतना पानी खड़ा है जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त मेरे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इस हवाले से। वो क्या कहते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे? एक तो सीवरेज सिस्टम खराब है, दूसरा बारिश का पानी खड़ा है। यहाँ का सीवरेज सिस्टम तो इतना ख़राब है कि ये तो अभी 2 दिन हो गए हैं बारिश को, लेकिन अभी तक ये देख लें पानी खुश्क नहीं हुआ। जिस दिन बारिश होती है वहाँ उस दिन तो गुजरने का रास्ता नहीं, और जगह जगह इतने खड्डे हैं कि वासा के जितने भी दावे थे ना वो धरे के धरे रह गए। पीटीआई हुकूमत नाकाम हो गई है। मेरा खुद का वोट पीटीआई को था, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं उनको वोट नहीं देता। जी बिल्कुल, शहरी जो है नाला नज़र आ रहे हैं हुकूमत से, इंतज़ामिया से। उनका ये कहना है कि वासा की कारकर्दगी बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि जो बारिशें शुरू हुई हैं ना तो बारिशों का पानी निकाला जा रहा है और ना ही जो है सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से शहरी जो है दोहरी मुश्किलात में मुब्तला हो चुके हैं। जी वकास शिराज फैसलाबाद से बता रहे थे। आगे बढ़ेंगे, सिंध से खबर शामिल करें। सिंध के जिला कंबर में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान कत्ल। नौजवान को 20 रोज कबल कत्ल केस की तफ्तीश के लिए मही मकोल थाना की पुलिस ने हिरासत में लिया था। नौजवान को कत्ल करके नामालूम अफराद लाश अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। वर्षा ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने रिश्वत ना देने पर नौजवान को फायरिंग करके कत्ल किया। मजीद बात करेंगे इसी हवाले से नुमाइंदा न्यूज़ खुदा बख्श मगसी से। जी खुदा बख्श, मजीद बताइएगा। इधर नया गाँव दिनों मुगेरी के बासी नौजवान रमीर चांडो को 20 दिन पहले मई मकोल थाने की पुलिस ने हिरासत में लिया। 2 महीने पहले इसे एक साल का कत्ल हुआ था नामालूम अफराद से, तो इनको गिरफ्तार करके तफ्तीश के लिए लेकर गए, लेकिन 20 दिन के बाद आज उनकी लाश मिली है कंबर की सेल अस्पताल से। वसा को जब पता चला तो ये पहुंचे वहां पर, तो लाश पड़ी थी। उन लोगों ने कहा तो पुलिस ने हमारे नौजवान को गोलियां मार के हलाक कर दिया। जी ठीक, बहुत शुक्रिया। खुदा बख्श मगसी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। रहीम यार खान में असलहा की नुमाइश, नौजवान को महंगी पड़ गई। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार नौजवान अहमद जबी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट टिकटॉक पर फायरिंग की वीडियो अपलोड की थी, जिसके बाद थाना कोटसंबा पुलिस ने कार्रवाई करके नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान की कब्जे से पिस्तौल और गोलियां भी बरामद हुई। सरगोदा में कत्ल के बाद नहर से मिलने वाली 2 नौजवानों की शिनाख्त कर ली गई। नौजवानों की गला काट कर इनको कत्ल किया गया। बाद में लाशें अलग अलग मकामात पर फेंक दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब थाना मेला के इलाके बुच्चा कलां की नहर से मिलने वाली नौजवान की लाश का मुअम्मा हल हो गया। पुलिस के मुताबिक नौजवान की शिनाख्त नवीद के नाम से हुई, जिसे कत्ल करके लाश नहर में बहा दी गई, जबकि थाना मियाना गोंदल के इलाके से मिलने वाले नौजवान की शिनाख्त इरफान के नाम से हुई, जो रत्तू काला के रिहायशी है। लाशें पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई। DPO सरगोदा फैसल गुलजार ने वाक़े को नोटिस लेकर मुतलका थानों को कातिलों की जल्द गिरफ्तारी की हिदायत जारी की।
मानसेहरा में गैरत के नाम पर नौजवान लड़के और लड़की के कत्ल का वाक़े की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने लड़की और लड़के के वालिदैन और मामू समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। मानसेहरा पुलिस के मुताबिक जरीद के मुकाम पर नौजवान लड़की और लड़के को दोनों के वालिदैन और मामू ने फायरिंग करके कत्ल किया। लड़का और लड़की पसंद की शादी करना चाहते थे, ताहम वालिदैन इस रिश्ते पर राजी नहीं थे। SHO कागान के मुताबिक मकतूलैन के वालिदैन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना चाहते थे, जिस पर पुलिस ने अपनी मदयत में मकतूलैन के वालिदैन और मामू समेत 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। दीगर 2 मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक, मगर इससे पहले न्यूज अपडेट्स। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा। वफाकी वजीर असद उमर की सदर को कोरोना वायरस से निपटने के लिए NCOC के किरदार पर ब्रीफिंग। सुप्रीम कोर्ट का सहाफी मतीउल्लाह जान के अगवा पर तशवीश का इजहार। किसी को शहरी के बुनियादी हुकूक सल्ब करने की इजाजत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। फी तोला सोना मजीद 1500 रुपये महंगा। 1 तोला सोने की कीमत 1,15,000 रुपये तक पहुंच गई। खुशाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सख्त गर्मी में पीने का पानी बेनयाब हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो चुके हैं। अहले इलाका का डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और बल्दिया के खिलाफ मेन बाजार में एहतजाज। खुशाब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीने का पानी भी नायाब हो चुका है। म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से लगाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट देखभाल न होने की वजह से नाकारा हो चुके हैं। 3 माह गुजरने के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई स्कीम का पानी न मिलने पर लोग मुश्किलात का शिकार हैं। अहले इलाका का डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और बल्दिया के खिलाफ मेन बाजार में शदीद एहतजाज। लोगों ने कहा, ज़ेर ज़मीन कड़वा पानी पीने से लोग हेपेटाइटिस और दीगर मौजी मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जिला मानसेहरा आरिफ खान ने छतर प्लान रेंज क्वार्टर में खुली कचहरी का एहतमाम किया। कचहरी में छतर प्लान और बटल में मौजूद जंगलात के मालिकान ने शिरकत की। जंगलात के मालिकान ने टिम्बर माफिया के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। जंगलात के मालिकान का कहना है कि टिम्बर माफिया जंगलात का सफाया कर रहा है, लेकिन महकमा जंगलात खामोश तमाशाई बना है। जंगलात की हिफाजत पर मामूर निगहबान टिम्बर माफिया से मिले हुए हैं। अगर जंगलात की बेदरेक कटाई न रोकी गई तो बहुत जल्द जंगलात का मुकम्मल सफाया हो जाएगा, जिससे माहौल की आलूदगी में इजाफा होगा। अवामी शिकायत पर डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने जंगलात की कटाई रोकने की यकीन दहानी कराई। अलीपुर में हालिया बारिश की वजह से नदी नालों में तुगयानी आ गई। मौजूदा अलीवाल के नज़दीक नहर में शिगाव पड़ गया। कई बस्तियां और फसलें ज़ेर आब आ गई। अलीपुर के नवाही इलाके मौजूदा अलीवाल, कादरा और मुराद नहरों में शिगाव पड़ गया। शिगाव पड़ने से लोगों की फसलें और मुल्हिका कई बस्तियां ज़ेर आब आ गई। अहले इलाका शदीद परेशान। अपनी मदद आप के तहत नहर के शिगाव को बंद करने की कोशिश जारी है। हुकूमत से नहर बंद करके शिगाव बंद करने का मुतालिबा किया। जलालपुर भटिया में सेक्रेटरी ज़राअत की हिदायत पर ज़राअत ऑफिसर नौशीन सालह का छापा। लाखों रुपए मालियत की गैर कानूनी ज़रई अद्वियात बरामद। दुकानदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ज़रई ऑफिसर ने गैर कानूनी ज़रई अद्वियात की दुकान पर छापा मारकर 5 लाख मालियत से ज़ायद की गैर कानूनी और ज़ायदुल मियाद ज़रई अद्वियात बरामद कर ली। नौशीन सालहों के मुताबिक दुकानदारों बगैर लाइसेंस के मुख्तलिफ कंपनियों की गैर मियारी अद्वियात फ़रोख्त कर रहे हैं। दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ज़राअत ऑफिसर नौशीन का कहना है कि गैर कानूनी जाली और ज़ायदुल मियाद ज़रई अद्वियात फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। शोरकोट पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मंशियात फरोश 2 मन मंशियात बरामद। पुलिस ने दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार को रोका। मोटरसाइकिल के आहनी बॉक्स में 2 मन मंशियात बरामद हुई हैं। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DSP सर्कल शोरकोट की सरबराही में चौकी जलालपुर कमलाना पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 2 मन मंशियात बरामद की। DPO जंग डॉक्टर गयास गिल की हिदायत पर कार्रवाई की गई। दौरान गश्त मोटरसाइकिल सवार मुलजिम शौकत अब्बास को गिरफ्तार करके मोटरसाइकिल के आहनी बॉक्स से 2 मन भंग बरामद की गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FC साउथ के काविशों से जिला टांग के इलाके कड़ीवाम के सरकारी एल फीमेल स्कूल में मुकीम ऑपरेशन राह नजात के मुतासिन की वापसी अपने इलाकों में कर दी गई।
निजात से मुतासर सरकारी स्कूलों में मुकीम 55 खानदानों पर मुश्तमिल ब्रिटेनी कौम से ताल्लुक रखने वाली मुतासिरीन अपने इलाकों में 12 साल बाद वापसी कर दी गई, जिसमें FC साउथ ने मुतासिरीन को नकदी और सामान की शक्ल में इमदाद भी फराहम किया। स्कूल जो थे 12 साल से बंद थे, यहाँ पे ऑपरेशन राय निजात था और यहाँ पे जो है ना IDPs का लोग रह रहे थे और अभी जो है ना FC साउथ हम लोग बहुत शुक्रगुजार है कि 12 साल के बाद हम लोगों का ये 2 हाई स्कूल गर्ल्स स्कूल जो है और बॉय स्कूल जो है ना ये अभी 12 साल के बाद दोबारा खुल गया। FC साउथ की कोशिशों से न सिर्फ मुतासिरीन की वापसी मुमकिन हुई बल्कि सरकारी छुट्टियां खत्म होने के बाद इलाकाई बच्चे और बच्चे इन स्कूलों में अपनी तालीम को जारी रख सकेंगे। कैमरा टीम के साथ आयुब बिटनी, न्यू न्यूज़ टांग। जहानिया के नवाही गांव में FIA साइबर क्राइम विंग की कार्रवाई। भारतीय टीवी शो के नाम पर करोड़ों रुपए फ्रॉड करने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान मुख्तलिफ ममालिक में शहरियों को इनामात का झांसा देकर लूट मार करते थे। मुलजिमान का नेटवर्क भारत, सऊदी अरब और ओमान तक फैला हुआ था। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। तालीमी निज़ाम इस हवाले से आपको मज़ीद बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बताएं कि हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके गुजराती पाड़ा में 6 साल से फालिज के मूजी मर्ज में मुब्तला मंजूर रहमानी के इलाज के लिए उनकी अहलिया घरों पर काम करने पर मजबूर हैं। मुसलसल बीमारी ने घर में भूख व अफलास के डेरे डाल रखे हैं। इस बारे में देखते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख की यह रिपोर्ट। हैदराबाद के गुंजान आबाद इलाके गुजराती पाड़े में दर्जी का काम करने वाले मंजूर रहमानी पर 6 साल कबल फालिज का हमला हुआ तो इसकी हंसती खेलती दुनिया ही मायूसी का शिकार हो गई। भूख और अफलास ने घर में डेरे डाल लिए। 6 साल हो चुके, 6 साल से मैं इलाज करवा रही हूँ। अब दिल ये चाहता है कि दुकान भीख मांग के मैं अपने शोहर का इलाज करवा दूं। मंजूर रहमानी 6 साल कबल दर्जी का काम करता था कि इस पर फालिज का हमला हुआ और फिर वो पे दर पे कई मरतबा फालिज का शिकार हुआ। इस दौरान उसे शहर के सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां डॉक्टरों के गलत इंजेक्शन लगाने से उसकी जबान भी बंद हो गई। मंजूर की बीवी उसके इलाज पर लाखों रुपए खर्च कर चुकी है, जिसमें घर की जमा पूंजी भी फरोख्त हो गई। मेरे पास जो कुछ भी था, मेरा जहेज का सामान भी था, उन्हें जो कुछ जेवर वगैरह दिया, मैंने सब कुछ और वाकई हकीकत ये मैंने अपनी बीमारी में खर्च कर दिया। मंजूर की बीवी लोगों के घरों में काम करके अपने शौहर की सांस की डोर को चला रही है। इसने दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर अफराद से अपील की है कि उसकी मदद की जाए। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, न्यू न्यूज़, हैदराबाद। और अब एक नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पर। खानपुर में बासर अफराद की पंचायत, नौजवान पर नाजायज तलखात के शुबा में वहशियाना तशद्दुद, नौजवान का सर और मूछें मूंद दी, चेहरा भी काला कर दिया। पुलिस का एक्शन, मरकजी मुलजिम खलील और दीगर गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब का रावलपिंडी के इलाके सादकाबाद में बेटे के मां पर तशद्दुद के वाक़े का नोटिस, RPO से रिपोर्ट तलब। उस्मान बुजदार का कहना है तशद्दुद का निशाना बनने वाली बजुर्ग खतून को इंसाफ फराहम किया जाए। गुजरांवाला में थाना गखड़ के इलाके में बत्ताखोरी का वाकया, फायरिंग की CCTV फुटेज न्यू न्यूज़ को मसूल। फुटेज में बत्ताखोरों को फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजमान ताहाल गिरफ्तार ना हो सके। कराची में मेट्रोल साइट एरिया में मोबाइल फोन की दुकान पर डकैती, एक मुलजम खरीदार बनकर दुकान में मौजूद था, फिर मुसल्ला साथी दाखिल हुआ। मुलजमान कमीज शलवार पहने हुए थे, एक नकाब पोश, दूसरे का चेहरा वाज़ेह देखा जा सकता है। जनूबी वज़ीरिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 33 मरतबा गिनीज बुक आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले कुंग-फू कराटे के खिलाड़ी इरफान महसूद का सबसे ऊंचे पहाड़ पीरघर के ऊपर मार्शल आर्ट का मुजाहरा। मजीद बताएंगे मोहम्मद अयूब। जनूबी वज़ीरिस्तान से तल्लुक़ रखने वाले आलमी रिकॉर्ड याफ्ता खिलाड़ी इरफान महसूद, जिन्होंने 33 बार गिनीज बुक में आलमी रिकॉर्ड कायम किए, जिसमें हाल ही में आखिरी रिकॉर्ड यूनाइटेड किंगडम के खिलाड़ी पैडी डोले का 1 मिनट में 100 पाउंड वजन के साथ 68 पुशअप्स करके तोड़ा। मार्शल आर्ट खिलाड़ी इरफान महसूद ने 11,600 फुट ऊंचाई पर 3 के हमरा मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया। इरफान महसूद का कहना है गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में 34वां रिकॉर्ड जल्द पाकिस्तान के नाम करूंगा। सरगोदा में कोरोना के सेहतियाब होने वाले मरीजों को डॉक्टरों ने फूलों के तोहफे देकर घरों को रुखसत किया। रवानगी के वक्त डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ ने तालियां भी बजाई। सेहतियाब होने वाले मरीजों ने डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया। कहते हैं कोरोना की तशखीस के लिए आम आदमी अस्पताल आने से मत घबराए। सरगोदा के आइसोलेशन वार्ड में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों के लिए खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया। फोकल पर्सन
اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے صدر ڈاکٹر سکندر حیات وڑائچ کی سربراہی میں ڈاکٹروں کی ٹیم نے صحتیاب ہونے والے مریضوں کے لیے خصوصی تالیاں بجائی اور انہیں پھولوں کے تحائف پیش کیے۔ مریضوں نے ڈاکٹروں اور پیرامیڈک سٹاف کا شکریہ ادا کیا۔ مریضوں نے شہریوں سے کہا کہ شہری خوفزدہ ہونے کی بجائے کورونا کی تشخیص کے لیے اسپتال سے رجوع کریں۔ غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ اور اوور لوڈ شیڈنگ کی خبریں نشر ہونے پر وزیراعظم عمران خان کے نوٹس کے بعد وزیر اعظم کا لاڑکانہ کی عوام کے لیے تحفہ 132 kV گرڈ اسٹیشن دیکا سٹی لاڑکانہ کو اپ گریڈ کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد سکھر الیکٹرک پاور کمپنی حکام کی جانب سے 14 کروڑ روپے مالیت کے 2 پاور ٹرانسفارمر لاڑکانہ میں نصب کر دیا گیا، جبکہ دوسرا پاور ٹرانسفارمر عید کے بعد نصب کیا جائے گا۔ پاور ٹرانسفارمر کا افتتاح گرڈ سسٹم کنسٹرکشن کے پروجیکٹ ڈائریکٹر سیپکو منظور علی نے کیا۔ نئے پاور ٹرانسفارمر کی تنصیب کے باعث گرڈ اسٹیشن میں 20 میگا واٹ بجلی کا اضافہ ہو گیا، جس سے شہر کے 15 فیڈر مستفید ہوں گے۔ گرڈ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن سے ڈراپ وولٹیج اور شہر بھر میں اوور لوڈنگ کا بھی خاتمہ ہوگا۔ شمالی وزیرستان پولیس کے لیے نئی گاڑیاں آ گئی۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے قبائلی اضلاع کی پولیس کے ساتھ ایک اور وعدہ پورا کر دیا۔ دیگر اضلاع کے ساتھ ساتھ شمالی وزیرستان کی پولیس کو بھی 7 مزید نئی سنگل کیبن گاڑیاں حوالے کر دی گئی ہیں۔ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے قبائلی اضلاع کو پولیس کو صوبے کے دیگر اضلاع کی پولیس کے برابر لانے کے لیے عملی اقدامات مزید تیز کر دیے۔ شمالی وزیرستان کی پولیس کو بھی 7 مزید نئی سنگل کیبن گاڑیاں مل گئی۔ شمالی وزیرستان میں پولیس کی پیٹرولنگ مؤثر بنانے اور پولیس فورس کو وسائل کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اس سے قبل 3 گاڑیاں فراہم کی گئی تھی۔ آئی جی پولیس ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے 8 اور گاڑیاں شمالی وزیرستان کی پولیس کو فراہم کرنے کی منظوری دے دی۔ بھمبر میں 87 کروڑ روپے کی لاگت سے پہلے گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کی عمارت کا تعمیراتی کام شروع ہو گیا ہے۔ کالج کی تعمیر سے آزاد کشمیر اور پنجاب بھر کے ہزاروں نوجوانوں کو ہنرمند بننے کا موقع میسر آئے گا۔ آزاد کشمیر حکومت نے بے روزگار اور پڑھے لکھے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کے لیے بھمبر میں پہلی گورنمنٹ ٹیکنیکل کالج کی 4 منزلہ عمارت کی تعمیر کا آغاز کر دیا۔ سینئر وزیر چودھری طارق فاروق نے سائٹ کا دورہ کر کے تعمیراتی کام کا جائزہ لیا۔ سیکرٹری انڈسٹریز نے منصوبے پر بریفنگ دی۔ سیکرٹری خواجہ احسن کے مطابق کالج کی عمارت 50 کینال پر محیط ہے۔ منصوبے پر کام 2022 تک مکمل ہو جائے گا۔